Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm your hostess, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Dhanyavad Manoj. Yes, the headlines. Key domestic indices witness marginal gains. Sensex closes above 67,500 mark. Nifty settles above 20,100 level. Rupee closes at 83 rupees and 4 paise against the US dollar, and Brent crude hovers around $93.04 per barrel. उतार चढ़ाव के बीच हुए कारोबार में घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हुए बंद। प्रमुख सूचकांक थोड़ी सी तेजी के साथ ऊपर आए। सेंसेक्स 67,500 अंक के ऊपर आकर हुआ बंद। निफ्टी 20,100 के स्तर से ऊपर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 83 रुपए 4 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $93.04 प्रति बैरल के आसपास रही। Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं आज हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ आर्थिक मामलों के विश्लेषक जयंतो दास जी को। जयंतो नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू मनोज। Gee, he's there. आइए आगे बढ़ते हैं। आज घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ और प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 67,500 के स्तर से ऊपर आगे आकर 52 अंक बढ़त के साथ यानी 0.8% तेजी लेकर 67,519 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक बढ़त के साथ 20,103 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.15% की वृद्धि हुई। The domestic benchmark indices ended marginally higher in a volatile session today. The BSE Sensex finished above 67,500 level, whereas the NSE Nifty closed above 20,100 level. Both indices rose amid positive global cues. The BSE Sensex rose 52 points or 0.08% to finish at 67,519. NSE Nifty also advanced 33 points or 0.16% to settle at 20,103. In broader market at the BSE, the mid-cap index accelerated 1% and the small-cap index rose 1.15%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 15 companies appreciated while the rest declined. Mahindra & Mahindra rose 2.6%. Tata Steel gained 1.7%. Tech Mahindra advanced 1.6%.
On the other hand, Asian Paints declined 1.1%, ITC slumped 0.75%, and Sun Pharmacy tumbled 0.4%. In sectoral indices at the BSE, all the sectors witnessed gains. Realty sector was the top gainer as it surged 1.5%, followed by metal and oil and gas both, which added 1.4% each. Commodities advanced 1.1%. The overall market breadth was positive as shares of 2,446 companies appreciated and 1,202 companies declined. A total of 156 shares remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। जी। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में आज 83 रुपए 4 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 104.7 पर कारोबार कर रहा था। Hello, Jayanta. Hi. Hi. Jayanta, now we see that the Sensex has closes above 67,500 mark and Nifty settles above 20,100 level. It's the Nifty 50 everyone's talking about. According to a report, companies in the Nifty Mid Cap 100 and Nifty Small Cap 100 indices too reported robust operating and net profit margins in recent quarters. Janto, is this the mother of all bull markets? Well, that's a good jargon, I must say. But specifically, given the fact that both the small caps as well as the mid caps had an extremely dry run in the last 3 years or so. And specifically the mid caps, in some of the cases, even outrunning the large caps on specific days in the recent bull run. Obviously, it has been a much broad-based rally in the recent last 6 to 8 weeks, which we have witnessed in the market. Having said so, we must also put in a word of caution. The volatility index in the market is around 4.5% plus, which is pretty high. So, as I said, nice to experience the bull run, nice to experience across the board investors, our domestic financial investors, our foreign institutional investors, as well as our retail investors, pumping in money into the market with a lot of factors which is helping this money to come in. It's a good time in that sense, but obviously something to be also cautious across the board, because these are also times where the sensitivity index of the market is much higher. जयंतु, यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे, आम कह लें कि जो हमारे श्रोता हैं उनके नज़रिए से छोटे निवेशक के हितों को ध्यान में रखते हुए कि जब बाजार में यानी सावधानी बरतनी है उनको, तो किन चीज़ों की यानी किन तथ्यों की सावधानी रखें ताकि उन्हें नुकसान ना हो और बाजार में जो एक तेज़ी दिख रही है उसका कुल मिलाकर लाभ उन्हें वर्षांत में अधिक हो। देखिए, सबसे जरूरी बात मनोज ये है, बढ़ते हुए मार्केट में हमेशा आपका जो भी आपका साथ मार्केट में आपका साथ लेकर चर्चा करते हैं, आपका सहयोगी हो, आपका कोई ऑफिस का कोलीग हो, आपका दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, तो हमेशा वो लोग उल्लेख ये करते हैं मार्केट में एक ट्रेंड रहता है। मैं खास करके खुदरा निवेशकों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वो बताते हैं कि भाई पिछले 2 हफ्ते में मेरे को फिलाने स्टॉक में इतना फायदा हो गया, पिछले 6 महीने में मेरा फिलाने स्टॉक में इतना फायदा हो गया। तो उसके साथ साथ लोगों का कोशिश ये रहता है कि भाई अगर उसमें कुछ फायदा होगा फिर से मैं भी इसमें कुछ पैसा लगा लूं और शायद 2-3 हफ्ते में कुछ और भी फायदा ले दूं। तो ये एक बहुत ही डेंजरस जोन है ऑपरेट करने का, और जैसे आपने सही कहा कि भाई नुकसान ना हो किसी इंसान का, खास करके बढ़ते हुए मार्केट में। ये जरूर है कि इस तरह का मार्केटों में आप बहुत ऐसे स्टॉक मिलेंगे जहाँ पे 200, 300, 400% तक उछाल हुए हैं, जिस स्टॉक्स के बारे में शायद आपने नाम भी ना सुने हो कभी, और खास करके जिसको पंटर स्टॉक को खड़ा किया जाता है। तो इस जोन में आपको बिल्कुल प्रवेश नहीं करना है। और जैसे हमेशा की तरह मैं कहा, अगर सेंसेक्स का स्तर नीचे हो या सेंसेक्स का स्तर ऊंचाई में हो, कोशिश करें जो स्टॉक्स के बारे में आप जानते हो, जो सेक्टर के बारे में आप जानते हो, और अगर जानते भी नहीं हो, उस क्षेत्र के बारे में सही सूचना लेके, चाहे आप इंटरनेट के द्वारा सूचना ले, 200 के से ज्यादा अधिक माध्यम है, आप टीवी में सूचना ले उनके बारे में, उस कंपनी के बारे में खुद थोड़ा बहुत रिसर्च करें, खुद थोड़ा बहुत पढ़े। कोई भी कंपनी के बारे में रिसर्च करके पढ़ने में इतना डेटा मार्केट में आजकल अवेलेबल है, खास करके इंटरनेट में अवेलेबल होते हैं, समय आपको आधा से 1 घंटे से ज्यादा लगता नहीं है, और साथ में आप उस हिसाब से निर्णय ले। तो जैसे मैंने कहा, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, जहां पे आप निवेश करते हैं, खुद अपना रिसर्च बेशक खुद करें। किसी
कहे सुनी बातों के ऊपर निर्भर करके आप अपना निवेश करेंगे तो ये जरूर है कि आपको नुकसान हमेशा ऐसा नहीं कि होगा, लेकिन नुकसान होने का जो एक रिस्क है वो काफी ज्यादा रहता है। Jayanta, the index is considered as an indicator of the pulse of the Indian economy. Do you think the Indian investor has matured now, and it's investing more in stocks and moved a little away from the realty sector or gold? Although realty sector is the top gainer today, as it has surged 1.5%, followed by metal and oil and gas, both which have added 1.4% each. How do you view these? Are my two kind of clubbed questions. Well, realty obviously has been one of the star performers of the recent past, along with auto, capital goods, power sector, as well as manufacturing. These are the sectors which have actually carried forward. And of course, banking. Although banking of late, around say 2-3 weeks ago, has been a bit of a laggard in that sense, but nevertheless, banking consistently has given good returns. Coming back to the second part of your question, and that is whether retail investors are coming in a much more bigger way. Obviously, there is reallocation of their own portfolio. If you ask the common man, if you refrain yourself from just going from data in terms of who investing is rupee whether it's in bond or whether it's in real estate or whether it's in stocks or whether it's in FDs and things like that, I think every single person, as I said, in times when the markets are good, would like to put an extra dime of their own in the stock market. So obviously reallocation obviously happens, and that's a good healthy indicator because for any investor, there has to be a dynamic reallocation of their own assets, keeping two principal strategies in mind. First is the risk appetite, and secondly, obviously, is their time length of investment. Your or my risk appetite may be the same, but you may need your 1 lakh in the next 2 years. I may need my 1 lakh in the next 3 months. Right. So that's also a critical determinant of where and how you're investing. Typically on bull markets, specifically, people have extremely short-term focuses of 2 months, 4 months, 6 months to go in. The good thing is we are also having extremely high FD rate of interest because there was a decisive story in the recent past, I guess a few days ago, where it said that, the loan market is in a very, very booming stage, as a result of which FDs, the chances of the FD rates going a bit higher from these levels are much more. So that's also a good indicator in that sense. जंतु यहाँ पर यानी हम आप ही ने जो कह लें जो जानकारी दी वहीं पर वापस लौटना चाहूँगा। रियल्टी सेक्टर, ऑटो सेक्टर और कुछ और सेक्टर भी जिनका प्रदर्शन बेहतर रहा है, रियल्टी सेक्टर के पीछे तेज़ी के प्रमुख कारण क्या हैं, ये पहला कह लें कि सवाल, और साथ ही जुड़ा हुआ क्या आने वाले दिनों में भी हम इसमें इसकी चमक बरकरार रहने के आसार आकलन कर रहे हैं? देखिए, एक रियल्टी सेक्टर का अगर हम बारे में बात करें तो दो चीजें, एक तो रियल्टी सेक्टर का स्टॉक्स, उसका वैल्यूएशन, उसका निवेशकों के ऊपर क्या रुचि रहता है, हालांकि दो चीज जुड़े हुए, और दूसरा एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप घर खरीदना चाहेंगे कि नहीं इस वक्त, उसका भी एक सवाल है, खास करके जहाँ ब्याज दर आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्तर पे है। तो वो भी लोग अपना सेकेंड हाउस या थर्ड हाउस जब खरीदते हैं ये सोच के खरीदते कि भाई मैं निवेश करूंगा तो इसमें शायद मेरे को रिटर्न अच्छा मिलेगा, चाहे रेंटल रिटर्न हो या चाहे कैपिटल अप्रिशिएशन रिटर्न जी। तो दो चीज जुड़े हुए हैं, लेकिन बेशक इन्वेस्टर की रुचि जो है हमारा खास करके खुदरा निवेशक जो ज्यादातर हमारा श्रोताओं में है, मेरे को लग नहीं रहा है कि हम लोग खुदरा निवेशक एज रिटेल इन्वेस्टर हम लोग हर दूसरा दिन घर खरीदते हैं। वो एक अवधि टाइम पीरियड लंबा होता है, लेकिन ये जरूर है कि रिटेल सेक्टर का फायदा उठाने के लिए बेशक रिटेल स्टॉक्स में जाके भी पैसा लगा सकते हैं, जिसका अच्छा ड्रीम रन हुआ है। अब रहे आपका मूल सवाल जो था वो ये है कि इसमें रुचि बढ़ने का वजह क्या है, राइट? ये आपका मूल सवाल था। मैं मानता हूं कि देयर हैज बीन सम रिफाइनमेंट एंड रीएलोकेशन ऑफ क्वालिटी एसेट्स इन द रिटेल सेक्टर, और खास करके काफी लंबा दौर रहा रिटेल सेक्टर का, जहां पे रिटेल सेक्टर बहुत धीमी स्तर पर पड़े हुए थे। इस वक्त लोग सोच रहे हैं कि कुछ क्षेत्र में अगर बार्गेन हंटिंग, नॉट ओनली बार्गेन हंटिंग बट इंक्लूडिंग गुड परफॉर्मेंस अगर वापस आते हैं तो उनको बहुत फायदा बेशक इसमें आ सकता है। एक तो ये है। और हैविंग सेड सो, मैं पिछले हफ्ता भी एक बात रिटेल सेक्टर के रियलिटी सेक्टर के लिए कहा था, वो ये है कि देखिए बैड इन्वेंट्री अभी भी बहुत ज्यादा मार्केट में है,
ऐसा नहीं कि रिटेल सेक्टर के उछाल के साथ साथ बैड इन्वेंट्री खत्म हो गए, और साथ में स्टॉक इन्वेंट्री, मतलब कि जो 70-80-90% तक बन के घर डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, 5 साल 7 साल 10 साल डिले चल रहे हैं, ऐसे भी बहुत एसेट्स अभी भी है देश में। और जो एनसीएलटी के द्वारा कोर्ट केसेस में तरह तरह का अलग अलग स्तर पे फंसे हुए हैं, बैंक्स का भी काफी पैसा फंसा पड़ा है। लेकिन इसमें द सिल्वर लाइनिंग है, अगर रियल एस्टेट में प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट्स है जो 70-80-90% के करीब बन के फंसा पड़ा है, उस प्रोजेक्ट का वापसी आने में एक बहुत अच्छा चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि जो बिल्डर है, बिल्डर को एक एग्जिट रूट मिल जाता है, जहां पे सोचिए उनके पास कोई भी प्रोजेक्ट में 5-10% बिल्डर के पास एक्सेस इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, तो बिल्डर कोशिश करते हैं कि भाई मार्केट में दोबारा जाके ये इन्वेंट्री को बेचने का कोशिश करते हैं, उम्मीद में कि भाई अगर इसको मैं 2 करोड़ मिल रहा था पिछले 2 साल पहले, आज शायद 2.5-3 करोड़ में फ्लैट में बिक सकता है, तो उसका एक लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा हो जाता है। और दूसरे स्तर में जो बैंक्स के पास कुछ बिल्डर्स जो है, जो बैंकरप्ट स्थिति में नहीं है, जो एनपीए घोषित नहीं हुए, दूसरे तरह का जो बॉर्डर लाइन में जो बिल्डर्स बैठे हैं, जो शायद वापस बैंक के पास जाके ये कह सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो में जो टोटल अनयूज्ड इन्वेंट्री या अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, उसका मेरा वैल्यूएशन अगर 100 करोड़ था, आज का मौजूदा वैल्यूएशन वो 100 करोड़ बढ़ के 130 करोड़ हो गया, 140 करोड़ हो गया, तो जो 30-40 करोड़ का मार्जिन से वृद्धि है, उसमें शायद बैंक से उन लोग को लोन मिल सकता है एक्स्ट्रा। तो ये मैं मानता हूँ एक थोड़ा सा एग्जिट रूट का उनका थोड़ा एक विंडो छोटा सा ओपन होता है, और शायद ये अच्छा रहेगा पूरा उपभोक्ता के लिए, खास करके जिन्होंने घर खरीदा है और घर का डिलीवरी का उम्मीद पिछले 2-4-5 साल 7 साल से कर रहे हैं। श्रोताओं, बहुत ही उपयोगी सलाह आपको रियल्टी सेक्टर पर मिली है। इस पर ध्यान से, यानी आप कह लें कि विचार करें और उस हिसाब से ऐसे क्षेत्र में निवेश करें, या यदि आपने घर लिया हुआ है तो उसके आने वाले दिन कैसे होंगे, उस पर विस्तृत जानकारी जयंतु ने आपको दी है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज कुल मिलाकर प्रमुख बाजारों में लिवाली दिखी है। निवेशकों की लिवाली से हांगकांग का हैंग सूचकांक मामूली 0.2% बढ़त के साथ बंद हुआ। उधर दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.5% की तेजी देखने को मिली। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.4% ऊपर आया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई, और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.95% उछाल के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.7% लाभ में चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.2% की तेजी दिख रही थी। फ्रांस का कैक 40 बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था। A look at the US markets now. Wall Street closed mixed yesterday after data showed underlying inflation remained on its slow and downward trajectory. The Nasdaq Composite Index advanced 0.3% and the S&P 500 added 0.1%. On the other hand, the Dow Jones Industrial Average slipped 0.2%. Can we compare inflation in the US and inflation in India? We know that at 6.8%, it is well above the RBI's threshold of 6% here. Can we make a comparative comment, Jayanta? Well, see, the inflation pressures are very much real in both the countries. And specifically at this point of time, none of these two economies can actually wish away inflation in the near future that easily. So obviously the rates are going to remain so at these levels. They might be increasing a tad higher, but they're certainly not cooling off very fast. Now coming back to the US, and this is a very interesting observation which has happened in the last 2 days, where a lot of observers have now started believing that by December, the Fed might decide to start lowering interest rates, specifically given the fact that US might enter into a recessionary phase, despite the high inflation. Oh. So obviously that's something important to look forward to. And if that happens, that would trigger another round of, some sort of exuberance, some sort of a relief for a lot of industries who are in the borderline, facing a lot of pressure because of these high interest rate levels. आइए विदेशों से लौटते हैं स्वदेश, लेकिन चर्चा हम जारी रखेंगे पूरे विश्व की। जी।
The fourth G20 Global Partnership for Financial Inclusion meeting began in Mumbai today. The three-day meeting will bring together over 50 delegates from G20 member countries, special invitee countries, and international organizations. The meeting involved discussions on the ongoing work of the financial inclusion agenda under G20 India presidency in areas of digital financial inclusion and SME finance. In the three-day meeting, a symposium has been organized on the digital public infrastructure for energizing micro, small and medium enterprises. The symposium will include panel discussions around two key themes, namely energizing MSMEs for higher economic growth through digital public infrastructure and credit guarantees and SME ecosystems. In the symposium, global experts will delve into the role of digital public infrastructure in fast-pacing financial inclusion of MSMEs. Jantu, we did showcase our digital public infrastructural prowess to the entire world in the ongoing or just finished G20 event. We still have more to go. Now, what next? Well, there has obviously been a huge exuberance and rightful exuberance on the extremely successful G20, not only the run-up for the last 1 year, but also to the summit in terms of deliverables, in terms of how it was managed, in terms of how it was put forward, specifically India's digital front. Now, I have a little bit of contrarian view, specifically when it comes to the digital front. And I think despite all which has been shown in the G20 summit, India's digital activities, actions, as well as achievements have been there persistently and consistently available in India way before even the G20 summit has happened. This includes not only the digital achievements which India had in the last decade or so, or even more than that, but also includes which has been reflected in terms of financial inclusion. And having said so, my work makes me travel to the remotest parts of the country every day in and day out. And as I'm speaking to right now over the phone, I'm in a very remote corner of Karnataka, almost amidst the jungle somewhere for work. So this particular area also, I travel for 40 miles, 50 miles, in the day. And even the most cornerest of the farmer, if he is selling a small bit of vegetable produce on the highway, he is sitting there with his digital scan QR code. So that's the extent where the digital outreach has been. In the most remotest parts of the hills, we can still make payments digitally. We can still, buy stuff digitally. And I not witnessed this across anywhere, even in advanced economies in terms of penetration. And when I say the digital penetration is just not cities, the way it has penetrated the corners, the most remotest corners of India, is a fascinating story. And for me personally, this is something which I witnessed not only just in September, which has been the pinnacle of the G20 event happening, but I've been witnessing this for the last 5-7 years. So I guess India needs not again and again keep on saying that we have reached a digitally successful stage. It has been well established in terms of its penetration. G20 obviously has been a showcase and aggregation of whatever establishments were, having specifically more than 30-35 world leaders congregating here in one single place. जैन तो यानी बड़े अच्छे से आपने भारत ने जो यानी कह लें सफलता हासिल की है देश के सुदूर कोने तक, यानी एक छोर से दूसरी छोर तक जो डिजिटल क्रांति हुई है वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, उसका आपने अपना वैयक्तिक यानी पर्सनल उदाहरण दिया है। यहाँ पर हम यदि खेल की शब्दावली का प्रयोग करें तो खेल की शब्दावली में कप्तान यदि बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसका पूरा असर टीम पर पड़ता है। ऐसे में क्या हम उम्मीद करें कि वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक स्तर पर जो भागीदारी हो रही है, तो अभी जो समस्याएं कह लें विदेशों में जाने वाले एक देश के दूसरे देशों के नागरिकों को होती है, उसका समाधान निकल पाएगा? ग्लोबल जो समावेशन की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें बिल्कुल हो पाएगा। और सिर्फ ये नहीं, जैसे मैंने उदाहरण से फिर से जैसे मैं कहा, अगर देश का गन्ने का रस बेचने वाला का पास भी एक क्यूआर कोड है, डिजिटल एक्सेप्टेंस ऑफ मनी, अगर वो ले रहा है और कहीं पे कहीं उसका बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है, एक स्तर पे ये। दूसरे स्तर पे अगर हमारा जो गिनी चुनी जो लीडर्स है आईटी इंडस्ट्री में, हम सबको पता है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इस तरह का कंपनीज जो पूरा दुनिया में
अपना विस्तार रूप से अपना प्रभाव भी बता के रखा है, पहुंचा के रखा है। एयरलाइन इंडस्ट्री करीबन 60 to 70% एयरलाइन इंडस्ट्री ग्लोबली ये सारे कंपनीज का सॉफ्टवेयर एंड डेटा मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ कोडिंग एंड ऑल यूज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बेशक कोई दो राय नहीं है। और अपने कप्तान का बात बेशक सही कहा, लेकिन मैं साथ में ये भी मानता हूं कि उपभोक्ता के रूप में देखिए, एक तो बात है प्रचार और विस्तार करना कोई भी चीजों का, उसका सही उपयोग हो, लेकिन उपभोक्ता हम आप है। उपभोक्ता आज का तारीख में जो बंदे मंदिर के बाहर बैठ के फूल बेच रहा है वो है। अगर वहां तक जाके इसका फायदा उपभोक्ता ने उठाया है, उसका साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और खुशी खुशी जैसे मैंने कहा उस डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो ये बहुत विस्तृत रूप से हमारा चिंताधारा का एक, मैं मानता हूँ, रेवोल्यूशन आया हुआ है देश में। और जैसे मैंने कहा कि 5 इंच का जो स्क्रीन है स्मार्टफोन का स्क्रीन, हमारा डिजिटल रेवोल्यूशन उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन सबका जेब में, चाहे वो 5,000 रुपया का फोन हो या चाहे 1.5 लाख रुपया का एप्पल का आईफोन हो, सही उपयोग करके उस 5 इंच का स्क्रीन का द्वारा कैसे अपना फायदा उठाता है। जब ये चीज पहुंचा है हमारा नागरिक के पास, तो बेशक मैं ये भी मानता हूं कि ये जो दौर है, ये दौर कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अच्छे तरह से इस दौर में हम जीत हासिल कर चुके हैं। अब ये है कि इस प्रभाव को किस रूप से हम अपना देश का फायदा कर सकते हैं आगे जाकर। नहीं, यहाँ पर जयंतो मेरा एक सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ ये भी है कि इसका लाभ, यानी जो G20 देश के लोग हैं और जो नए कह लें कि इसमें अभिरुचि लेने वाले सदस्य देश हैं, उनके साथ किस रूप में यह संभव हो सकेगा और उसका क्या बिल्कुल हाँ बिल्कुल। देखिए, एक उदाहरण स्वरूप मैं कहूंगा, अफ्रीका एज अ नेशन अभी जो है G20 में शायद, राइट जी, और अफ्रीका में सबको पता है एयरटेल ऑलरेडी वहां पे एस्टेब्लिश्ड है डिजिटली। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पहले से काफी देश और काफी दुनिया का साथ इंडिया का विस्तृत रूप से कहीं ना कहीं पार्टनरशिप हुए हैं, कंपनीज जाकर वहां पे काम कर रहा है। इंडियन PSU सेक्टर में, जी माइंस, मिनरल्स, मेटल्स, एनर्जी सेक्टर में काफी PSUs विस्तृत रूप से बहुत सारे देशों में जाके अपना प्रभाव डाल रहा है। और साथ में आज का तारीख में चंद्रयान का जो एक हासिल हुआ है, चंद्रयान का टेक्नोलॉजी के बारे में छोटे देशों में बहुत एक उत्साह है, जहाँ पे वो कोशिश करना चाहते हैं कि भाई हम भी किस तरह से जुड़े इसरो का प्रोजेक्ट के साथ, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो ये भी एक मैं मानता हूँ बहुत बड़ी रूप से, जैसे आपने कहा G20 का दौरा, G20 में जिस तरह से ट्रेड पैक्ट साइन हुए, जिस तरह का देश और देश के बीच में जिसको हम G2G कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, इसमें सारे फायदा अक्रॉस द बोर्ड होना, अगर कंपनीज को फायदा होगा, कंपनीज का फायदा सीधे जाके नागरिक तक पहुंचे। जी, आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सराफा बाजार कमोडिटीज की ओर। Yeah, oil prices soar today with Brent crude topping $93 a barrel for the first time this year as expectations of a tighter supply outlook for the rest of this year overshadowed concerns over weaker economic growth and rising US inventories. In intraday trade, Brent crude was trading at $93.04 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $89.70 per barrel when reports last came in. आइए अब चलें सराफा बाजार, घरेलू सराफा बाजार। पहले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज समाचार तैयार किए जाने तक सोने और चांदी के मूल्यों में नरमी देखी जा रही थी। अक्टूबर अनुबंध वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में आज 108 रुपए घटकर 58,485 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 789 रुपए घटकर 70,630 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। वैश्विक बाजार की ओर चलें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी अंतर्दिवसीय कारोबार में सोने और चांदी में नरमी देखी जा रही थी। सोना समाचार तैयार किए जाने तक $1,928.90 प्रति औंस पर था। चांदी भी मंदी के साथ $22.87 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से आपका जयंतो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Key domestic indices witness marginal gains. Sensex closes above 67,500 mark. Nifty settles above 20,100 level. Rupee closes at 83 rupees and 4 paise against the US dollar, and Brent crude hovers around $93.04 per barrel. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Manu
Manoj Pathak signing off. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. The news read by